This conference will now be recorded. Yes. So I hope you people revised, Ash. Yes, sir. चल बेटे, so शुरू करें. Ash, ग्रुप 15 के मेंबर सुनाएगा? So nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Nitrogen, phosphorus. Phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Very good. तो इन दोनों में डी ब्लॉक आता है? नाइट्रोजन नहीं. फॉस्फोरस में? Yes, sir. नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी? 4. एंड फॉस्फोरस की? 5. 6. 6 नेगेटिव. Okay, sir. PCl तो है ही है कि बिकॉज इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, सो इट हैज अ लोएस्ट एसिड आल्सो. ग्रेट. चलो. So we started with group number 15. So let's move ahead. तो आपको इसकी प्लेसमेंट तो पता ही है. यहाँ पे we are focusing on nitrogen, then we will be going for phosphorus. पर मुझे लगता है कि आज की क्लास में हम शायद ही नाइट्रोजन को खत्म कर पाए. So here we start. The hydrides. Ideally, तो जो hydrides होते हैं बेदी, hydrides में the oxidation state of hydrogen has to be minus. For example, this is calcium hydride. Here, calcium is in +2 and hydrogen is in the minus oxidation state. -1, yes. But hydride P block class 11 जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन माइनस में ही जाता है, तो हम उसको कन्वेंशनली हम जो P block के हैं हम उनमें भी हाइड्राइड्स की ही बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वाला हो गया, इससे पीछे एक मीथेन आ गया, इससे आगे वाटर आएगा, इससे आगे फ्लोराइड आएगा. सिवाय इसके इन सब में the hydrogen is sitting in the positive oxidation state. Do you people remember boron, organic chemistry? The boron is in +3, hydrogen is in the minus oxidation. -1, yes, sir. So even this is also going to be classified as hydride. Topic will be very very important, very easy. And अगर अभी मेरे साथ समझते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाद इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. All elements of group 15 form hydride of the type MH3 with M represent the element. Ammonia, Ash, phosphine, Ash इसलिए element पूछे थे बेटे. Arsine, stibine, antimony Okay. is the stibine. Bismuth wala is bismuthine. All the hydrides are formed by action of water or dilute acid on binary metallic compound such as magnesium nitride. If you people remember, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है. It is like this: when 1 mole of magnesium nitride is hydrolyzed by excess of water, then the number of moles of ammonia produced is going to be how much? कोई बता सकता है? 3 सर. सर 3. कर दिया बेटिया. तो अमोनिया के कितने मोल्स पैदा होंगे? 2 मोल्स पैदा होंगे. इसी प्रकार से अब नंदनी आपने बोला है बेटिया, संभालिएगा, अगर मैं इसको लिमिटिंग रिएजेंट बनाऊं और वाटर को एक्सेस में डालूं तो फॉस्फीन के मेरे पास 2 मोल्स आते हैं. दिस क्वेश्चन. Yes, sir. So all of them are going to produce zinc hydroxide, magnesium hydroxide, along with Nandini, ammonia, phosphine, arsine, stibine, and bismuthine. All the hydrides are colorless gases. All ammonia की बात करते हैं. Their smell become more and more बुरी as atomic number increases नीचे. The poisonous nature is going to increase नीचे जाते हुए. Ammonia is highly soluble in water because of hydrogen bonding, but other hydrides are going to be very less soluble क्योंकि उनमें polarity नहीं पाई गई है. We are entering into a very important phase, right sir?
सो एमी हाइड्राइड्स ऑफ इस वक्त ग्रुप 15 एलिमेंट की बात कर रहे हैं मेरे। जहां पे भी मैं स्ट्रेस करूंगा मुझे वहां पे जोर चाहिए, ठीक है जी, कोई चीज भूलने वाली है। अमोनिया, phosphine, arsine, stymine, bismuthine. You people remember a concept known as hydrogen bond. Hydrogen bonding Yes, किसमें sir. पाई? Hydrogen bond. Yes, Amy. Hydrogen bonding happens when hydrogen is essentially and Phone. directly with either of form. For example, अगर अमोनिया हो, फॉर एग्जाम्पल वाटर हो, What? और F हो, इन सब में नंदनी ठीक बोल रहा है, कौन सी बॉन्ड होगी? हाइड्रोजन Hydrogen बॉन्ड। bonding. जैसे ही नाइट्रोजन से नीचे जाऊंगा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, क्या नहीं है, Bismuth. बिस्मथ। एमी नाम लीजिए, दिस इज द वे यू शुड बी रिमेम्बरिंग। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलिनाइड, बस चेक करते रहना, टेलुराइड, सल्फाइड, सेलिनाइड, and we do not talk about polonite. Yes, sir. This is going to be hydrogen chloride, hydrogen bromide, Bromide. हाइड्रोजन। Iodide. यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और यहाँ पे जब हम नीचे जाते हैं तो इन सब में हमारे पास Van der Waals forces. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी। सो Okay. पहली आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड डाइपोल डाइपोल द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। सो आप देखेंगे हर फैमिली में अमोनिया का, अभी वाटर पे थोड़े समय बाद जाता हूँ, will be having highest melting and boiling point. The point to be observed मुझे याद नहीं चाहिए, बट हाँ आपको अंदाजा होना चाहिए। 195, 238 and suddenly it is going to dip. Rather, we can ask you why ammonia exists as a liquid, right, under ordinary conditions, whereas the phosphine is going to be what? The हमारे पास एक गैस बननी शुरू हो जाएगी। अमोनिया को लिक्विड बनाना आसान होगा और फॉस्फीन को लिक्विड बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव टू टेक केयर, इफ यू पीपल रिमेम्बर, अभी अभी जो ये लड़की बोली थी हमारी, जिसका नाम था रतन, रतन ने कहा कि इन सब में एक लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस तो एडिशनल होती है। रतन याद आ गया? लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बोनस फोर्सेस, कि आपके पास एक चीज तो है ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, वगैरह वगैरह। वन एडिशनल फोर्स व्हिच द मदर नेचर हैज प्रोवाइडेड टू एवरीवन इज अ लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस। And London dispersive forces, it increases as the molecular weight increases. Therefore, एकदम अमोनिया का ज्यादा होगा, phosphine will be having the least boiling point or melting point. Then it will start showing an increasing trend. The same thing will happen here also. The hydrogen sulfide will be having least melting point and boiling point, and जैसे ही नीचे जाओगे ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस फैमिली में HCl का लीस्ट होगा, और जैसे ही नीचे जाओगे ये क्या करना शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। The point is very important. वैल्यूज याद नहीं करनी है, but yes, you should know that. इस फैमिली में सानिया शर्मा 195, 139, 156, 185. Do you understand, son? It is going to decrease, and उसके बाद immediately it is going to start what, son? It is going to increase. I'm sorry, इधर लिखना था, इधर। और पर ये देख 238, ये एकदम गिर गया, फिर दोबारा बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ना शुरू हो गया। अब पर यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में देखना वही ट्रेंड था, डिक्रीज हुआ। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं पर, करवाएगा पर? यस सर। तो सबसे कम गुड़िया ऊपर से देख के बता, फॉस्फीन, फॉस्फोरस। फॉस्फीन बोलेगा।
और उसके बाद आरसी, Arsenic. Arsine. उसके बाद अमोनिया, उसके बाद स्टीबाइन Antimony. और उसके बाद बिस्मुथाइन। एक बार जरा ट्रेंड देख लेना, अगर मैंने कहीं गड़बड़ी की है पर एक बार चेक कर लेते हैं। 185 बेटा डाटा नहीं याद करना है। दिस इज 210, दिस इज अमोनिया का 238.5 याद नहीं करना, ठीक है ना, सिर्फ ट्रेंड देखने का है। स्टीबाइन का 254. 254 और बिस्मुथाइन 290. का, देख ये पूरे 4 नंबर की लॉटरी लग सकती है। मैंने मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखा बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड समझ आ गया, ज्यादा कम ज्यादा ज्यादा। बट अमोनिया का यहाँ पे कहाँ पे आएगा अगर बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बोलो सबसे ज्यादा Ammonia. अमोनिया, उसके बाद Uh, उसके बाद arsenic और phosphine. बेटे इसको प्रेफरेबली अपनी एनसीईआरटी में मार्क करना। सो आई हैव tried explaining concept 1 and 2 here. सिर्फ 1 and 2 को अभी मैंने explain किया है। आगे जा सकता हूँ, ठीक? Yes, sir. एक लीजिएगा, तो इसको यहाँ से erase कर देते हैं so that I can discuss more with you people. Now let's move ahead. एक मिनट भैया इसकी कॉपी और कर लेता हूँ, मुझे चाहिए होगी, तो ये इसको आगे ले जाता हूँ। Yes, now focus on the third parameter. The third वाला पैरामीटर के ऊपर ध्यान दो, एलिमेंट हाइड्रोजन डिस्टेंस। जितना बड़ा एटम होगा उतना वीक बॉन्ड बनाएगा, और वीक बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा बनाएगा। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, नोटिस करो, फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड, phosphorus hydrogen and arsenic and the antimony hydrogen bond, stibine में nitrogen hydrogen bond is going to be the strongest होगा, and ये वाला is going to be क्या होगा, weakest होगा। Weakest. that is you can say नीचे जाते हुए bond dissociation energy will Decreases. तो आप देखिए ना थर्ड पॉइंट में दिस इज 101, थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। सो देयरफॉर द बॉन्ड डिस्टेंस इज गोइंग टू व्हाट, इंक्रीज ऑन मूविंग डाउनवर्ड। बिस्मुथाइन का इसलिए नहीं दिया कि बिस्मुथाइन हमारी मुट्ठी पे भी अगर आप रखोगे तो ये डिकम्पोज कर जाएगा। So that is the reason कि इसका उसने आपको bond distance नहीं दिया। This is going to be very unstable. Fourth point देखो, अर्श तुम बात करोगे। अर्श, do you remember the more stable bond, the more stable, the more is the bond energy, or you can say इसका क्या मतलब है बेटा, कोई बात नहीं, पढ़ के बता। Heat of formation. नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आर गोइंग टू बी ज्यादा स्टेबल, ठीक है जी। तो Yes. अभी भी आपने बताया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथाइन, which is going to be most stable, Ammonia. अमोनिया, because bond dissociation एनर्जी से रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, this is going to be most stable। तो गुड़िया Yes. इस जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी that is going to be most negative। Yes, sir. Want you should memorize the data, that is not required। so ये तीसरा पॉइंट था, हमने पीछे किया। अब फोर्थ पॉइंट को देखो, this is going to be the heat of formation का, this is going to be yes maximum
Stable. and these are going to be less. Do you understand? पॉजिटिव का क्या मतलब है कि अर्श खाना नहीं खा रही है तो माँ ने जबरदस्ती तुम्हें सेवा करके खाना खिलाया, so that is she has spent the energy. और अर्श को बहुत भूख लगी थी तो अर्श आराम से 4-5 परोठे खा गई है, so that is going to be negative and that is going to be the positive. समझ आएगा बेटे? Yes, sir. This is reflected in the element hydrogen distance also. The more stable the bond, the shorter the bond. And Yes, fifth sir. one, ये सारे एक ही चीज से रिलेटेड हैं. तो dissociation enthalpy, what is dissociation enthalpy? The energy being required to break 1 mole of particular type of bonds in the compound. So it will be having which energy? Highest. And this will be having lesser, and this will be having the least bond dissociation energy. This means the stibine is going to be what, son? The Weakest. weakest. And ammonia is going to be what? The strongest. Do you understand? Yes, Now, sir. one thing more, just use your common sense. So, ammonia, nitrogen, phosphorus, मैं इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कि इससे मेरे के सारे हाइड्राइड्स निकल रहे हैं. आगे बोलो. Arsine, stibine, bismuthine. बिस्मुथाइन. इसका जो साइज है इट इज लाइक अ मार्बल, और बिस्मुथाइन का साइज है दैट इज लाइक अ फुटबॉल, एंड दे ऑल विल बी व्हाट? Lewis base. तो इस केस में अगली बार CD लिख दूंगा. चार्ज डेंसिटी क्या होगी? Maximum. इस केस में CD क्या होगी? लीस्ट. Minimum. Therefore मैं कह सकता हूं Lewis बेस की जो स्ट्रेंथ है वो नीचे जाते हुए क्या करेगी? डिक्रीज Decrease. करेगी. It is going to decrease. The same thing. Anybody having any objection? Please talk to me right now, because this is fundamental. Once we come out of that, तो इसके बारे में हमें दोबारा बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. Maybe when I write it 6 or 7 or 10 times, then you must be feeling कि मैं क्यों लिख रहा हूं. That situation should happen when you are studying. बिकॉज जब वो सिचुएशन आती है कि हमें पता लगता है हाँ जी समझ आ गया, अब आगे चलो, फिर 2 बार लिखो, हमें समझ आ गया, आगे लिखो, दैट इज अ परफेक्शन की स्टेज है. सो यू सेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट? Weakest. Strongest. Strongest. Stronger. हाँ बिल्कुल. नंदनी मेरे उसमें चक्कर में फंस गई थी, मैंने फंसाने की कोशिश की थी तुम्हें. एंड दिस इज गोइंग टू बी सन क्या होगा? Weakest. एग्री? Yes. नंदन, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, Yes, sir. हाइड्रोजन, Yes, sir. which will produce hydrogen easiest, the ammonia or the bismuthine? So bismuthine. Bismuthine. बिल्कुल सही. तो अमोनिया के मुकाबले, फॉस्फीन के मुकाबले नीचे जाते हुए आपका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या करेगी? Increases. Increase. इंक्रीज करे. एंड हालात के मुताबिक हमारे पास ऐसी चीजें होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अगर मैं अमोनिया को सोडियम के साथ रिएक्ट कराऊं, सो सोडियम विल बी आयोनाइज्ड NaNH2, में क्या बनेगा? H+. सो दैट इज गोइंग टू गिव इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी आल्सो. अरे अमोनिया इज एम्फोटेरिक. अमोनिया कैन गेन अ प्रोटॉन, अमोनिया कैन लूज अ प्रोटॉन आल्सो. तो अगर मैं नीचे जाते हुए लॉस ऑफ H+ देखूं, वो भी क्या बनेगा? इजी. तो नीचे आते हुए इवन द
एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. यू अंडरस्टैंड? एंड दिस ट्रेंड विल बी हैपनिंग इन आने वाली फैमिलीज के अंदर भी. HF, HCl, HBr, HI की तरफ जाएंगे, नीचे जाते हुए जो हमारी acidic property है, that is going to increase. Reducing property is going to increase. They are going to behave similarly. Now, did you notice? चलो इस पेज पे लिख देता हूँ, कुछ कारण है तो ये हम पढ़ चुके हैं. The basic character decreases, पढ़ते रहना. Stability Yes. decreases. Reducing agent हम decreases. Bond angles of hydride. एक प्रॉपर्टी मैंने ऊपर नहीं की थी, अगर आपको याद हो तो मैं उसको छोड़ गया था. ये वाला बॉन्ड एंगल, मैं ये वाला पॉइंट लेने वाला हूँ, द बॉन्ड एंगल इन हाइड्राइड्स. तो बेदी मैडम, इसका वेस्पर थ्योरी के मुताबिक 3+1 ट्राइगोनल, हाँ बेटिया, pyramidal. वो ट्राइगोनल प्लेनर से तो गलती कर गया है ना, वो टीपी लिखते थे उसको. तो बाकी सब में भी तो वही फॉर्मूला चलेगा ना. स्पोरस, Yes, sir. तो सबका जो शेप है वो हम वही उम्मीद कर रहे हैं, Pyramidal. पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल. एंड बिस्मुथाइन में भी मैं वही वाला शेप उम्मीद कर रहा हूँ. सी, आपको याद नहीं करने का है, बट हाँ इंटेलिजेंट जो होगा वो जरूर रखेगा. सी 107.8. नोटिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन. 93.6 ऑलमोस्ट सीधा 91.8 डिग्री, 91.3 डिग्री. दिस इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 90 डिग्री, बट उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें टेम्परेचर को बहुत कम रखना पड़ता है, बिकॉज बिस्मुथाइन रूम टेम्परेचर पे ही डिसोसिएट कर जाता है. सो दैट इज व्हाई द डाटा इज नॉट देयर. सो आर यू ऑब्जर्विंग द बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड is decreasing on moving downward. ये Yes, क्लास वेस्पर में भी आया था, on moving downward. Let's see why it happens. The fundamental is as electron density, ED बोलेंगे, on central atom decreases in same geometry. Same geometry का मतलब 3+1 की 3+1 से बात करना, 2+2 की 2+2 से बात करना, 4+1 की बात 4+1 से करना. So in the same, the bond angle decreases. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है. एंड वाइस वर्सा, बिकॉज क्लास 11th वेस्पर थ्योरी में तुम्हें कहा गया था जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो रिपल्शन का कारण बनती है. सो द सेंट्रल एटम ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट इन द 3-dimensional space. So more the bond angle, the more the bond angle, the more the stability. जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर 2 को वो लीनियर रखने की कोशिश करता था. दिस इज द मॉलिक्यूल AX2. AX2, तो AX2 is almost going to be 180 डिग्री पे होगा. अगर मॉलिक्यूल AX3 होगा तो हम इसको 120 डिग्री पे रखेंगे. और अगर AX4 होगा तो डिपेंडिंग अपॉन हाइब्रिडाइजेशन वो 109 डिग्री 28 मिनट्स या स्क्वायर प्लेनर में वो 90 डिग्री पे भी हो सकता है. बट याद करने की बात ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. Therefore we are going to discuss this. You please focus on A part, ये वाला. तो here what is going to happen is as you are moving downward, you observe that electronegativity of central atom क्या कर रही है, decrease. So therefore electron density on central atom is going to decrease and the bond angle is going to increase. बेदी समझ गया? बेदी
राइट हैंड साइड पे देख, ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा ना, आई थिंक आपने भी इंक्रीज बोला था। यस सर। अच्छा ऊपर लिखा सही था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगी तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, यस सर। तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। नीचे आते हुए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथाइन, तो यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम इज डिक्रीजिंग, Decreasing. the bond angle is what, decreasing. Going to be less. डिक्रीजिंग, Bond angle decreases. The same drama will be happening in the next family also. Oxygen, sulfur, selenium, and tellurium. The bond angle will be decreasing there also, right? No need to remember the bond angle, but yes, fundamentals has to be seen. अगर पानी में 104 डिग्री था तो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड में वो 92 डिग्री आ गया है, and as you are moving downward it is almost becoming 90 degree. You understand? Almost Yes. becoming 90 degree. Same angle, bond angle decreases because electron इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। decreases. Good बेदी। अब बेदी एक काम और प्रैक्टिस करते हैं, ऑक्सीजन एंड द क्लोरीन, लेकिन मैं उसी टेबल में बनाता हूं ताकि आपको समझने में वो दिक्कत ना रहे, ठीक है जी। तो इसको ब्रोमीन लगा देते हैं। अब देख, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब सेंट्रल एटम नहीं देख रहे हैं, अब हम ब्रोमीन को देख रहे हैं। ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो ऐसा मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर हिंदी लिखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, तो बॉन्ड एंगल गुड़िया क्या करेगा, डिक्रीज। वेरी गुड। और अगर इसकी जगह पे क्लोरीन ले आए और इसकी जगह पे अगर फ्लोरीन ले आए तो दिस इज गोइंग टू बिकम even more electronegative. एंड इन सब में दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम electronegative. Do you understand? So Yes. what is the moral of the story? As electron density on central atom decreases, bond angle decreases. As electron density on central atom increases, the bond angle increases. Can you understand from this? Yes sir. This is going to happen in every family के hydride में hydrogen bonding is present in this. The hydrides of group 15, 16 and 18 shows similar trends. I have seen and you will be observing बिल्कुल क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्ट आते हुए जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं. So let's revise it once again. This is group 16 आ गया. Water, sulfur, selenide, telluride. Hydrogen selenide, hydrogen telluride. See बेटा, the water का melting point is ज्यादा. It decreases. Now with respect to this, it has started increasing. Increasing. Yes sir. तुम्हारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं आ रही है. सबसे ज्यादा किसका है, वाटर का, उसके बाद H2S का लीस्ट, H2SC, H2 telluride. समझ आएगा? Yes sir. बोइलिंग पॉइंट में भी वही ट्रेंड है. दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एंड दिस इज गोइंग टू हैव एकदम गिरा और उसके बाद क्या करना शुरू कर गया, बढ़ना शुरू कर गया. ठीक. The element hydrogen distance is increasing, indicating element hydrogen, हर्ष ने जैसे बोला था, बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक होता चला गया नीचे की तरफ.
बॉन्ड एंगल याद तो मत करना, बट अगर कोई क्वेश्चन दिखा तो यू शुड नो कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी है, बट क्वेश्चन पाए गए हैं 104, 92, 91, 90, दिस इज ऑलमोस्ट लीनियर। अगर आप ज्योमेट्री देखेंगे 2 + 2 से ये कभी भी नहीं निकल सकता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम नेगेटिव। जी, मैक्सिमम नेगेटिव का मतलब क्या होगा? Most मोस्ट stable. Yes, sir. लेस स्टेबल, इवन लेसर स्टेबल, द मोस्ट अनस्टेबल। अब अगर ये मोस्ट अनस्टेबल है, ये H+ भी आसानी से दे सकता है, ये हाइड्रोजन भी आसानी से दे सकता है। What I want to say is the dissociation constant will increase downward. Acidic Increase. nature increases, reducing nature decreases. Heat of dissociation, ditto same trend, it will decrease because the bond is becoming weaker. What does dissociation constant tell you? More dissociation constant का मतलब क्या होता था? More acidic. So सर इसका मतलब डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज कर रहा है ना? हाँ, आपने आई थिंक अभी डिक्रीजेस बोला, तभी मुझे लगा कि सही Yes. सुन रही हूँ कि नहीं। पीछे किया भी था, रिवाइज कर लेते हैं, पता नहीं कब किया था कि नीचे जाते हुए रिड्यूसिंग करेक्टर क्या करेगा? बढ़ेगा। नीचे जाते हुए एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा। कोई बात नहीं, तेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। नो प्रॉब्लम, जितनी मर्जी बार रिपीट करो। अच्छा, अब यहाँ पे फोकस कर। विच इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक? यस सर, टेल्यूरियम वाला। But this is going to be least acidic. 1.8 into -6 ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से निकल के आता है। 10 to power -14 होता है ना, तो मोलरिटी ऑफ वाटर 55.5 निकल के आता है। सो ये इंफॉर्मेशन वहां से हमारे पास आ रही है। नाउ यू पीपल टेल मी, आउट ऑफ फिनोल, कॉन्सेप्ट वही है जो अभी भी किया, एंड आउट ऑफ थायोफिनोल, O and S, which is more acidic, that is more Ka, Arman Kaushal, lesser pK. Yes. S. Do you people understand why, Nandani, Akshita? Because oxygen hydrogen and sulfur hydrogen bond में से this is going to be the weaker. Weakest. समझ आएगा? Yes. तो हाइड्रोजन हेलाइड में भी वही ट्रेंड पाया गया है जो हमने आपको पीछे कराया। इसको कॉपी मत करना, जो मेरा हैंडरिटन आप चाहिए उसको कॉपी कर सकते हैं और यू कैन सेव द नोट्स, बट ये टेबल आपके एनसीईआरटी में रहे, वहां पे है और वो आपका बेस बने। सो दैट इज व्हाट आई वांट। अब देख भाई, एमी और सनी, मेल्टिंग पॉइंट बेटे HF का ज्यादा, HCl एकदम डिप कर गया, HBr, HI, राइट? ये जो मैं लाल पेन से लिख रहा हूं ना, दिस शुड बी कॉपीड एट समथिंग, एंड रिमेंबर जेई और नीट से पहले आपने इसको देखना है। जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ, इसको कहीं पे लिख लिया करो कि नीट से पहले क्या देखना है। आई डू नॉट टेल यू कि तुम्हें सारा सिलेबस देखना है, तो हमारी मदद करिएगा। सबसे ज्यादा किसका है बेटे? HI का? हाँ जी सर। वेरी गुड सैनी। उसके बाद कितना है? HF का। HF का। और उसके बाद गुड़िया किसका है? HBr और फिर HCl। Remember, HCl is a gas. This is the trend of melting point. सुनो, मैं एक अक्षर में लिखूं अगर मैंने क्वेश्चंस ना दिखे हुए हैं, सो इससे अंदाजा लगा लिया करो कि मैं कहाँ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ। देन गुड़िया जरा बॉइलिंग पॉइंट पे देख के कर। सबसे ज्यादा तो HF का सबसे ज्यादा, गया है और फिर सबसे HI। यू राइट, थोड़ी सी स्कीम लगा ली। और HBr का 206,
और HI का एक मिनट गुड़िया, एक मिनट एक सेकंड अभी ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूं? HCl का आपने कितना बताया था? 189 वेरी गुड। और HBr का 209 206 6 206 ठीक है भैया 6। और कौन-सा हो गया हमारा? HI 238 238 8 This is the point. We do not want that sir you remember 238 HF का था 293 ओके। 290 तो मैंने काटा इसलिए है कि आपको ये रटना नहीं है, बट आपको ऊपर वाला जो ट्रेंड है दैट इज इम्पोर्टेंट। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज अ ट्रेंड व्हिच इज गोइंग टू हैव हाईएस्ट और व्हिच इज गोइंग टू हैव लोएस्ट। और एक बहुत एग्जामिनर को ये चीज पसंद है, वो बार बार पूछता है इसको। ठीक, चलिए तीसरा बॉन्ड लेंथ, वही वाला डिस्कशन जो हम पीछे कर रहे थे। increases, heat of dissociation decreases, decreasing pK increases, pK गलती होगी अभी ठीक कर रहा हूं, decreases, pKa सनी अगर नहीं आता 10 बार पूछ, क्योंकि जरूरी टॉपिक है। क्या तुम्हें पता है pKa कैसे एसिड स्ट्रेंथ को बताता है? Don't hesitate, please ask. हाँ, अगर इंक्रीज होएगा तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। कम होएगी More proportional. more acidic strength more Ka Ka and less pK less pK. So इसका मतलब HI is going to be इस कैटेगरी में कौन सा एसिड है? strongest acid And HFS। ये तीनों जो प्रॉपर्टी आ रही हैं, ये तीनों 4, 5, this is because of the element hydrogen bond, yes, and weakens on moving downward। कार्तिक ठीक है, आगे जा सकता हूं? Anybody having Yes, any sir. objection? Because of importance बेटे, तो अगली जब फैमिली करेंगे तो हलाइड्स डिस्कस नहीं करेंगे, because we have discussed halide here, group 15, group 16 and group 17 halide, 18 के तो हो गई। So this topic should be taken as important। खासकर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल के ऊपर ध्यान करना। बॉन्ड एंगल में भी ट्रेंड कोई डिफरेंट नहीं है, बट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तुम लोगों को याद होने चाहिए। गुड जी, चलिए आगे चलते हैं। सो वी एंटर इनटू द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी नोन एज हेलाइड्स। अभी हमने हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 डिस्कस किए थे। हेलाइड्स हैलोजन के साथ बॉन्ड। अब नाइट्रोजन is quite an electronegative element. Halogens are also electronegative element. So this bond is going to be not a very stable bond. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, so they will be having repulsions और ये बॉन्ड टूट जाएंगे। The main halides नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे बनाते हुए पाएंगे। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ट्राई हेलाइड्स तीनों प्रकार के बनाते पाए गए। You remember nitrogen does not form pentahalide because nitrogen के पास कुशल empty d orbital नहीं है। आयोडीन बड़े मुश्किल से हेलोजन के साथ कंपाउंड बनाता है बिकॉज आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। सो यू विल नॉट फाइंड अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल मॉलिक्यूल आया PI5 जैसा, तो नॉर्मली आयोडाइड 5 में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। PCl5, PF5, PBr5 you can form, but as you expect that this is going to be quite unstable। आप एक क्रिकेट की बॉल के आसपास बड़ी फुटबॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं,
सो नॉट अ वेरी स्टेबल थिंग। पेंटालाइड में देखिए फ्लोराइड जनाब हर जगह पे बैठे हैं, पेंटाक्लोराइड एंटीमनी का फॉर्म हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है, अब फास्फोरस का हो रहा है। जस्ट अ रीडिंग ओनली, नॉट टू बी बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने वाली नहीं है। तो इन सबका शेप इफ यू पीपल रिमेंबर द NX3, अर्श याद आया? जैसा बेदी ने अभी बोला था, दिस इज गोइंग टू बाइपिरामिडल, बाय कहां से आ गया डोंकी? पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है गुड़िया जो ऑक्टाहेड्रल में निकलता है, यहाँ आप ट्राइगोनल बायपिरामिडल। जैसे आपका प्लेन है ना, तो एक टर्मिनल की तरफ आ रहा है, एक पीछे की तरफ जा रहा है, और यस यहाँ सर, पे PX5 मैंने जनरल लिख दिया, नाइट्रोजन नहीं लिखा। बोल गुड़िया, 5 और 5 बाय 2, 5 प्लस 0। यस सर, तो डू यू पीपल रिमेम्बर इसका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है? Yes. The axial bonds are going to be longer लॉन्गर, and weaker, और जो equatorial bonds, इक्वेटोरियल, those are going to be शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। and अभी थोड़े समय में फिर दोबारा डिस्कस कर, ठीक है? अभी डिस्कस करता हूँ, ये थोड़ा समय के बाद बात करता हूँ। चलिए, ट्राइहेलाइड्स, all the ट्राइहेलाइड are stable except नाइट्रोजन के। इनमें नाइट्रोजन का छोटा साइज और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हैलोजन का साइज योगदान दे रहा है। These are very unstable. The unstable nature of जो NF3 को छोड़ दिया उसने, right? NF3 stable बोला है, is due to low polarity and large difference in size of halogen and nitrogen atom. ये समझ गए बच्चों? हिमांशु, Yes, कार्तिक, sir. due to presence of lone pair, they can act as Lewis bases. Lewis base. अब तीसरा बता, एक मार्बल के ऊपर एक लॉन पेयर और एक फुटबॉल के ऊपर एक लॉन पेयर, वो कहानी तो है ही, बट एक और कहानी ये लेके आ रहा है। इन केस ऑफ नाइट्रोजन हेलाइड, द टेंडेंसी टू एक्ट एज Lewis base decreases from Ni3 to NF3. What could be the reason, Bedi? I'm audible? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है और आयोडीन की कम, मतलब तो फ्लोरीन decreases down इलेक्ट्रोनेगेटिविटी the अपने और फ्लोरीन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने और खींचेगा, तो नाइट्रोजन will become electron deficient and hence it will not be able to donate electron pair electron as pair. Ni3. Yes. Fourth point, also the tendency to act as Lewis base decreases from nitrogen to bismuth. अभी भी तेरे को कुछ बता रहा था, मार्बल और क्रिकेट की बॉल, तो सोच के बता इसका क्या आंसर है? क्योंकि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? सॉरी डिक्रीज होएगी चार्ज डेंसिटी। वही वाला केस जो अभी हम एमी बात कर रहे थे ना, अमोनिया में नाइट्रोजन, फास्फोरस में, फॉस्फीन में हाइड्रोजन, स्टीबाइन में एंटीमनी, तो साइज सेंट्रल एटम का क्या करता जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो उनकी जो हमारे पास लुइस बेस स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है? कम 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 होती चली। Yes, sir. अब एक और चीज देख, ये जहां पे मैंने अश को पूछा था वैलेंस, उसकी वैलेंसी के बारे में, देख नाइट्रोजन तो पेंटाहाइलाइड बनाता ही नहीं है, उसको तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है? तो NCl3 इट इज गोइंग टू बी व्हाट? Lewis base। बढ़िया, NCl3 की जगह पे अज्यूम कर ले NX3, ठीक है? अब जब फास्फोरस का पेंटाक्लोराइड आ गया, यू रिमेंबर फास्फोरस हैज व्हाट? Empty d orbitals. और इससे नीचे सबके पास है, इसके Yes. नीचे सबके पास है,
तो आपके पास फास्फोरस, ये जो ज्योमेट्री है ना, ये कुदरती तौर पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल ज्योमेट्री है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इसमें मदर ने एक पार्शियलिटी की हुई है, उसने एक्सियल बॉन्ड को वीक रखा हुआ है और इक्वेटोरियल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। सो दिस इज अ वेरी अनस्टेबल पिक्चर। तो फास्फोरस के पास अब हमारे पास आपने बोला क्या चीज है? empty d orbitals. एम्प्टी डी ऑर्बिटल और नॉक नॉक क्लोराइड आयन आ पहुंचता है। क्लोराइड आयन इज अ लोवेस्ट बेस। तो ये इसके पास इसके होटल में एक खाली कमरा दे, and it is electron rich, so it has to take rest. Therefore there happens to be formation of a dative bond sort of thing, and you will be having phosphorus की कौन सी oxidation state और कौन सी valency 6 देखेंगे। Yes, sir. And this is going to act as what? Lewis acid. Yes, sir. Did you understand? EX5 accept nitrogen. Nitrogen तो बनाता ही नहीं है ना। They Yes. do act as Lewis acid, right? और जो trihalide and they act as Lewis base. This is what I wanted to tell you. Also the tendency to act as Lewis base हो गया था। पांचवा point, the trihalide of phosphorus and antimony, especially fluoride and chloride, act as Lewis acid by using their vacant d orbital. Trihalide PCl3 and antimony tri. These are going to be Lewis base तो है ही है, प्लस ये क्या है? Lewis acid. जबकि जो पेंटाहेलाइड्स है, antimony pentachloride, these are going to act as only Lewis acid. base क्यों नहीं act करें? No lone pair. Because no lone pair, so therefore no Lewis base. Character. I do not think इन चीजों को याद करना पड़ता है। I think इन चीजों को तो पढ़ना पड़ता है। याद करने वाली चीजें तो ये होती हैं। NF3 and PF3. अरे, all halides are hydrolyzed. Why NF3 and PF3? What different peculiarity you are observing? So you can say कि NF3 और PF3 नहीं टूट रहे होंगे। What do you observe? NF3 और PF3. Think of something. हिंट देता हूं, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। जब वो किसी के साथ भी जुड़ जाता है तो वो स्टेबल बॉन्ड नहीं बनाने देता। से काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मजबूत Fluorine. बॉन्ड ना, नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड और नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, phosphorus fluorine bond are very stable bond, and hence they do not dissociate, they do not get hydrolyzed because of the element fluorine bond की strength की वजह they do not get hydrolyzed. All other nitrogen, chlorine on hydrolysis form ammonia and hypochlorous acid. PCl3 forms hypophosphorus acid. phosphorus acid बोल सकते हैं, वैसे hypophosphorus होगा। अभी आज स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इनके साथ, आज या अगली क्लास में प्लस HCl बनाता है। बेटा यहाँ पे तुम्हारी जो रोट लर्निंग है वो काम कर रही है। एक बात बताओ बेदी, सन्या, पर्ल, NCl3 में which is negative, which is positive? So N नहीं। Fluoride is negative क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। प्यारे से डोंकी। ओके सर, N ज्यादा नेगेटिव है। आज तुम बताओ। ठीक So है, N. N। तो अरमान जी बोल लेते होते हैं, राइट? NCl3 अगर इसके ऊपर पानी डालेगा, बेदी ऑब्जर्व कर, नाइट्रोजन किस में बैठा है बेटिया?
-3. और HClO में गुड़िया क्लोरीन किस में बैठा है? बोलो यार, Yes. नहीं आता तो क्या हो गया, कोई जुर्म थोड़ा हो जाएगा कि तुमने नहीं आता था। है ना Yes, नंदिनी? sir. यप, बोलो, बात करो, सीखोगे। अब बच्चों PCl3 में, अरे यार कौन पॉजिटिव है, मेरे ऊपर यकीन मत करना, आई एम अ ट्रेनर। Yes, sir. अब H3PO2 में अच्छा दीदी, यस सनी, फास्फोरस के ऑक्सीजन स्टेट बता गुड़े। ये गलती है, ये मेरी गलती है, मैंने उसको ठीक कर दिया। Yes, sir. और बहना क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देख, शर्मा बात कर, या तो रटेगी या समझेगी, अगर समझ लिया तो यू विल बी अ क्लास अपार्ट, राइट। पर तीसरा देख, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, आर्सेनिक किस पे बैठा है पर? +3. -1। गुड़िया कोरिलेशन बना, अब जैसे फास्फोरस ऐसे ये, समझ पा रहा? Yes, sir. जो भी अश करवा थी बेटी, समझ, अश सिर्फ देखते रहो। क्या गुरुजी ने पिछली क्लास में करवाया था कि एंटीमनी की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी ऐसे एग्जिस्ट करती है। Yes, sir. So, याद करो, बिस्मुथ की जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पानी में कैसे एग्जिस्ट करती थी? BiO plus. सी, आपके पास आंसर आ गया। Few people will be memorizing it. Just observe, -3, -3, +3, +3, +3, +3. But antimony की +3, if you people remember, antimony की +3 पानी में कैसे एग्जिस्ट करती थी? ऐसे, अमोनिया के ऊपर, एंटीमनी के ऊपर +3 एंड -2 मिलके कितना हो जाएगा? +1। समझ पा रहे हो? Check the oxidation state. It is not changing in hydrolysis. That's the beauty of this type of reaction. Either you memorize the equations or you just see some fundamental concept. What is happening? पानी तो बॉन्ड को तोड़ रहा है। अरमान समझा? एमी, अक्षिता, अन्या, आगे जा सकता हूँ। Hydrolysis. Yes, sir. And the oxidation state is not changing here. Pentahalides. Bismuth does not form pentahalides because of inert pair effect. Bismuth को +3 ज्यादा अच्छा लगता है, bismuth +5 में नहीं जाता था। The pentahalides have trigonal pyramidal shape in gaseous and liquid states, right? Which is not very stable structure. Why? The mother has done partiality. So यहाँ पे बेटे मैंने गलती किया हुआ है. These are equatorial. And these are going to be somewhat axial. The axial bond, अच्छा तेरे को पता है बेटे ये लंबे क्यों होते हैं कि नहीं पता है? नहीं पता तो मुझसे बात कर, पता तो मैं छोड़ दूंगा। क्योंकि रिपल्शंस होती हैं इसीलिए। कितनी होती हैं? ये रेड वाले कौन से हैं बहना? Anybody can ask question please. You are encouraged. ये वाले axial है, ठीक? ये axial दिख रहा है ना? पिछले वाले को मैंने छुपा दिया, इधर को axial दिख रहा है। ध्यान से देखना, axial को रेड वाले को 90 डिग्री पे 1, रेड वाले को 90 डिग्री पे 2, रेड वाले को 90 डिग्री पे 3, ठीक है? तो axial को 90 डिग्री, हिंदी लिखे थोड़ी सी, यस सर, पर 3 बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर,
पढ़ के बताओ गुड़िया। रिपल्शंस समझ आ गया। अब पर्ल दीदी व्हाइट वाला कौन सा है? इक्वेटोरियल। Yes, sir. इसको देखते हैं गुड़िया। 90 डिग्री पे एक और 90 डिग्री पे एक, दो रिपल्शन। पर मदद करना, कोई गलती ना कर दो गुड़िया। इक्वेटोरियल को ऐसे लिख रहा हूं, है ना। तो 90 डिग्री पर, हाँ जी, टू बॉन्ड पे रिपल्शन। पर दीदी किसको ज्यादा रिपल्शन मिल रही है हिमांशु? Axial. Axial. So therefore axial bond are some weaker or longer, or equatorial bonds are shorter and stronger. देखो ना, 90 डिग्री पे एक, 90 डिग्री पे दो और इसको 90 डिग्री पे तीन। तो ये जो ये बेदी, इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल। तो 90 डिग्री पे गुड़िया देखो कितनी रिपल्शन मिल रही है? तीन। एक्सियल को 3, 90 डिग्री पे बॉन्ड पेयर और इक्वेटोरियल को 2 रिपल्शन, 90 डिग्री। ज्यादा वाली हमने बात ही नहीं की, 120 डिग्री को लेके ही नहीं आए, हमने तो नजदीक वाली में देखी। सो एक्सियल बॉन्ड क्या होंगे? वीकर होंगे एंड लॉन्गर। और इक्वेटोरियल बॉन्ड हंडी shorter एंड शॉर्टर। वो रावण के पुतले के जैसे याद रखना। Now this is a unique molecule where the mother made this molecule and it did certain partiality. So that is the reason. And because of this, the PCl5 was never going to be a stable geometry. जहां पे इसको मौका मिला, ये क्या है? अनस्टेबल। ये फटाफट इवन थोड़ी सी हीट करने से भी ये PCl3 और Cl2 में टूट जाएगा। Why? This is trigonal bipyramidal. This is going to be simply pyramidal. This is going to be कौन सा होगा? Stable form में होगा। You understand? And PCl5 अगर solid state में हुआ तो ये जनाब टूट जाते हैं PCl4 and PCl6 नेगेटिव। ये पढ़ के बताइए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों? आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हुए पाए गए हैं। वो हमारा फॉर्मूला 5 4 -1/2 कितना आ गया? 4। दिस इज गोइंग टू बी 5 6 +1 कितना आ गया? 6। इसका शेप क्या है? ऑक्टाहेड्रल। इसका शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। दीज आर गोइंग टू बी, मैंने स्टेबल के क्या स्पेलिंग बना दी है? These are going to be what? Stable. हिमांशु, कार्तिक दोनों अनम्यूट करेंगे बच्चे और मुझे बताओगे कि PCl5 क्यों अनस्टेबल ज्योमेट्री है? क्योंकि it has inequality. It has two types of bond. Sure. Ideally, whenever hybridization happen, hybridization की definition क्या है? It produces equality. So whenever there is no equality, this is bound to fail because partiality तो खत्म होगी। Therefore, Himanshu, PCl5 in gaseous state, ये G का मतलब समझ आएगा ना दोस्त? Yes, sir. Yes. Exist as PCl3 and Cl2. Whereas in solid state, it exists as ionic form. Ionic form. अब देखें आप में से कौन मुझे इसका आंसर देता है? अब देखो यार, साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक कंबाइंड विद लाइक। अभी हिमांशु तुमने मुझे बताया PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है बेटे? एक ने क्लोराइड आयन दे दिया, दूसरे ने क्लोराइड आयन एक्सेप्ट कर लिया। हिमांशु बोलो यार। PCl4 plus and PCl6 minus. This is tetra, this is octa.
बट जो इसका कजन ब्रदर है PbR5, उसकी भी तो वही ज्योमेट्री है. इट एग्जिस्ट एज दिस एंड नॉट PbR4 प्लस. पल सोच के बताइए. हिंट साइज. क्योंकि PCl6 माइनस में 6 क्लोरीन ठीक बोला, ठीक बोला. PbR6 माइनस में 6 Br के होंगे P के अराउंड, तो वो साइज में बहुत अनस्टेबल 6 होएगा इसलिए. iron can't be adjusted around, हाँ गुड़िया, स्मॉल फॉस्फोरस. समझा? अरमान सिंह, ये बता, वाई Pi5 सॉलिड. सर पिछला वाला क्यों है सर ऐसा? तभी तो मैंने आपको बुलाया, क्योंकि तू चुप होकर बैठा हुआ था. मेरे को पता लग जाता है, मेरे यहाँ पे सिग्नल है. सभी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तुम में से जो सो रहा होता है या नॉन सीरियस होता है, वो यहाँ पे पता लग जाता है मेरे को. तो सर पिछला वाला ऐसा क्यों होगा सर? 6 कौन लाख सा BR. PbR5? यस सर. इमेजिन कर, ग्राउंड में चलते हैं दोनों, क्रिकेट की बॉल 5-7 लेके, फुटबॉल 5-7 लेके. एक बड़ी फुटबॉल के आसपास 6 क्रिकेट की बॉल लगा सकता है? यस. यस सर. अब उल्टा देखते हैं. अब एक छोटी क्रिकेट की बॉल के आसपास बड़ी 6 फुटबॉल सेट कर सकता है? नहीं सर. समझ आ गया? ठीक है सर. फास्फोरस का साइज अंकल छोटा है, तो वो 6 क्लोरीन को तो एडजस्ट कर गया, उसी के पड़ोसी है यार. और जबकि जो फास्फोरस का साइज छोटा है, ब्रोमीन उससे बहुत बड़े साइज का है, उससे निचली बिल्डिंग में रहता है. निचली बिल्डिंग का मतलब निचला पीरियड बोलते हैं पीरियड टेबल में. और जो Pi5 है, फास्फोरस ऊपर है और आयोडीन नीचे है. द पीरियोडिक टेबल सन, 1 मिनट 50 नंबर पेज याद रखना. इट्स अ प्रिजन. यू अंडरस्टैंड? प्रिजन. द प्रिजन, इट्स एक कैसल है जिसमें हमने जो हल्के मेटल्स हैं उनको ऊपर रखा हुआ है, हल्के एलिमेंट्स को ऊपर रखा हुआ है. और जैसे जैसे भारी होते चले जाते हैं, क्योंकि वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, उनका बाहर जाती है, उनको ऊपर रखा हुआ है. तो अगर तो तुम अपनी सेम फ्लोर वाले के साथ दोस्ती करोगे तो कर लोगे. अगर तुम अपने से ऊपर या नीचे वाले से दोस्ती करोगे तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं लेके आएगा. इसको बोलते हैं थंब रूल. तो बोलते हैं लाइक कंबाइन विद क्वेश्चन लाइक. समझ आएगा? अब क्वेश्चन तक कोई क्वेश्चन समझ आ गया मेरे दोस्त? ठीक है सर. पक्का? रटा तो नहीं ना यार? पक्का. नहीं सर. क्वेश्चन साहब, सो दीज पेंट हैलाइड डिकम्पोज इनटू स्टेबलर. ये समझ आया क्वेश्चन सर? इन कौन सी स्टेट? गैस और गैसियस स्टेट. These are also hydrolyzed by water. अब जरा अश से पूछते हैं. ओ बहन, कहाँ बैठा तू? Yes, sir. फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है? +5. मेरे ऊपर यकीन मत करना. क्यों? फास्फोरस के पास पॉजिटिव क्यों है, क्लोरीन के पास नेगेटिव क्यों है? So क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अगर हाइड्रोलाइज करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बहना चेंज होती है कि नहीं होती है? नहीं होती. तो देख, H3PO4 बनाऊं कि H3PO3 बनाऊं? H3PO4. वेरी गुड. और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है बहना? नेगेटिव. तो HCl बना दूं? Yes, sir. अपने आप तुमने निकाल लिया. मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया. Okay, sir. एक बार उसने पूछा कि अगर मैं PCl5 के ऊपर पानी की जगह पे बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल से कर लेना तो क्या बनेगा? बना सकता? So, कमिट अ मिस्टेक.
अगर ज्यादा से ज्यादा गलती होगी ना, चिंता मत कर। So D3PO4 एक्सीलेंट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तेरा। or DCl? वेरी गुड। लाइक हाइड्रोजन, लाइक आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम और ट्राइशियम। Yes, sir. PCl5 act as an effective chlorinating agent, क्योंकि वो क्लोरीन देने की ताकत रखता है। और क्लोरीन को मैं वैसे नहीं कहीं पे साथ में लेके चलूंगा। क्लोरीन इज लाइक, तुमने अपने घर में एक लेपर्ड पाल लिया है, एक लॉयन पाल लिया है, तुम सोचते हो कि वो अच्छा बिहेव करेगा, बट वो अपने नेचर से नहीं जाएगा। सो आई डू नॉट वांट टू कीप क्लोरीन विद मी। द मोमेंट मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, वो सबसे पहले मुझे ही खत्म करेगा। So we do not keep any such reagent which is going to be toxic or uncontrollable in the terms of reactivity. So wherever chlorine is required, rather than taking chlorine gas, which is awful oxidizing agent, it's a gas, I take PCl5, which is comparatively easier to handle. Lee-Shekler principle. The moment I open the ढक्कन of the bottle, the chlorine gas is going to escape, and that can be used for chlorinating. You have seen many reactions with that. ROH Yes. plus PCl5, right? Or COH plus PCl5. And the third point, X-ray study indicate PCl5 कैसे exist करता है और Ionic P fluoride. कैसे exist करता है, कौन सी स्टेट में Solid state ionic. और गैसियस स्टेट में। ठीक है जी। So So सिर्फ that is, phosphorus हाँ बोलो। तो सिर्फ phosphorus के ही पेंटाहेलाइड्स अनस्टेबल होते हैं कि सारे पेंटाहेलाइड्स अनस्टेबल होते हैं? सारे पेंटाहालाइड, right? Okay, sir. Remember one thing, whatever happens in your life happens in the chemistry also. If you are going to be always surrounded by lots of people, the trouble has to come. It is always going to be trouble. So bigger compound, unstable compound, गोबर बन के नीचे बैठने की कोशिश करता है, साधु बिहेव करने की कोशिश करता है। You can imagine, आपने वो हिप्पो देखा होगा है ना डिस्कवरी में। So hippo does not like to move, it will try to sit down. So similarly, a big compound is not going to be a very stable compound. हो भी सकता है, but again the knowledge comes. So again, but it is like that. और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, आप उनको जोड़ने की कोशिश करते हो, तो लड़ाई पक्का है। ठीक। Okay, sir. फाइटर्स एक में नहीं रह सकते हैं। एक फाइटर हो और एक उसकी प्रजा बनने के लिए तैयार हो, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। This is easy. So something which I found it easy, I will be giving to you people, right? Not a very, मतलब पूछे जाने वाला टॉपिक, बट पढ़ जरूर लेना बेटे, है ना। ऐसी चीजें आएंगी, मैं समझाने वाली चीजों के ऊपर ध्यान करूँ। तो ऑल ऑफ यू रिमेम्बर, पर याद रखना विभूति, कि तुम लोगों ने शहर एक टेबल बनाना है अपनी कॉपी में। आप पिछली बार पूछा था ना, अरमान ने पूछा था नोट्स बनाने हैं, अरमान सिंह, उसमें ना कोई एक नोटबुक ले ले। Yes. अगर लूज शीट्स ले सकता है वो ले ले, पर संभालना जरूरी है। मेरे कहे पे उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन अपने हाथ से लिखना। पहले क्या करोगे, ये पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है जी, दूसरे नंबर पे एनसीईआरटी। उसके बाद यहां से भी देखना, एनसीईआरटी में से भी देखना, बेटे नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की लिस्ट बनाना। ऐसे तो मैं क्लोरीन का बोलूंगा, ऐसे तो मैं ऑक्सीजन का बोलूंगा, राइट। ये जरूरी होंगे 3-4 चीजें, और दिस इज प्योर नॉलेज। Nitrogen was discovered by some scientist, Rutherford, 1772. In molecular form, it exists as N2, having a triple bond. N triple bond. आपको याद है, this is going to be a very stable bond. It is also referred as dinitrogen. It's a typical non-metal with high electronegativity next only to the oxygen. अगर आप टेबल देखेंगे तो आप नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम पाएंगे, बट क्लोरीन का साइज बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, सो वो उतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता है जितना नाइट्रोजन। सो दैट इज व्हाई अगर इनका कॉम्बिनेशन हो तो आपको याद है तुमने नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला था। एटमॉस्फेयर में ये अप्रोक्सीमेटली 78% पाया जाता है,
चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट को बोला जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट इज इंडियन सॉल्ट पीटर। नाइट्रोजन इज एन important constitutional part of animal and plants in the form of proteins. Nitrogen deserves special attention. It's very important, right? Nitrogen differs from the rest of the members of this group due to small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, and non-availability of d orbital. जरा अरमान सिंह पढ़ के बताया नाइट्रोजन डिफरेंट क्यों बिहेव करता है। सर छोटा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाई आयोनाइजेशन, इसलिए फिर नॉन अवेलेबिलिटी डी ऑर्बिटल। अब अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में ग्रुप 16 में आ जाएगा ऑक्सीजन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। सिर्फ यहाँ पे क्या डाल देगा अरमान? ऑक्सीजन, because of small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, non-availability of d orbital. उससे अगली फैमिली में आ जाएगा फ्लोरीन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। यही चारों चीजें आएंगी। इससे पिछली वाली क्लास 11 में चला गया कार्बन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, सेम साइज। यू अंडरस्टैंड बेटे? सेम चीज। ओके सर, गुड सर। सो द सेकंड पॉइंट, the nitrogen has unique ability to form p-pi b-pi multiple bond with itself and other element having small size and high electronegativity. देखो भाई सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होता है, पर नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑर्बिटल क्या है गुड़िया? p। तो इसको क्या बोलेगा? p-pi बैक बॉन्ड नहीं, तो p-pi बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर पर तेरे पास हाइड्रोजन साइनाइड हुआ गुड़िया, तो इसको क्या बोलेगा? इसका भी हाईएस्ट पी है, इसका भी पी है, तो इसको क्या बोलेगा? पी पाई सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसको भी दोनों का हाईएस्ट क्या है? पी पाई। डू यू अंडरस्टैंड सन? यस सर। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, heavier element do not form p-pi bond as their atomic orbital are so large and diffuse they cannot have effective overlapping. इसका मतलब क्या हुआ कि फास्फोरस अपने साथ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा यूजिंग अपना P और सामने वाले का P. Got it? It does Yes, not sir. form p-pi bond because इसका साइज बड़ा है, तो फास्फोरस का 2p की जगह पे कौन सा p आ जाता है? 3p। और जितना साइज बड़ा होगा ओवरलैपिंग उतनी मुश्किल हो जाती है। Do you understand? They cannot have effective overlapping. समझ गया? Yes, Now, sir. third point. Does nitrogen exist as diatomic molecule with triple bond between two atoms and therefore इसकी जो bond enthalpy है that is very very high. Nitrogen exists as discrete के स्पेलिंग गलत कर दिए, discrete diatomic molecule. Diatomic molecule का मतलब समझता है? वो रहा नाइट्रोजन, तुम उसको उठा सकते हो। On the contrary, phosphorus, arsenic, and antimony form single bond. arsenic, antimony, while bismuth तो metallic bond बनाता हुआ पाया गया है। phosphorus अपने साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता हुआ पाया गया है। It is going to form what, son? It is going to form the single bond. ना, फास्फोरस ट्रिपल नहीं बनाता, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाएगा और P4 के जैसे एग्जिस्ट करेगा। और एक चीज और, जो फास्फोरस है, जो फास्फोरस और फास्फोरस है, अगर सिंगल बॉन्ड बनता
तो लॉन पेयर तो इसके ऊपर भी होना था। और नाइट्रोजन अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसमें भी एक लॉन पेयर था, बट क्योंकि नाइट्रोजन का साइज गोइंग टू बी क्या होगा, वीकर बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू फास्फोरस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड बट वो इतना मजबूत नहीं होता है जितना फास्फोरस ड्यू टू स्मॉल। As a result, the catenation tendency in nitrogen is lesser. तो नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, N2, जबकि फास्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है, P4। P4. इसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा है और इसमें गुड़िया कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या है, कम है। समझ आएगा? Yes, sir. And another factor which controls the this thing affects the chemistry of nitrogen is the absence of d orbital. Therefore nitrogen ज्यादा से ज्यादा covalency कितनी शो करेगा, 4, because it does not have the d orbital, whereas phosphorus उससे ज्यादा शो करेंगे नीचे वाले। Therefore beside restricting its covalency to 4, nitrogen cannot form d pi p pi bond as the heavier element can form R3PO and R3P। ये अगले पेज पे चलते हैं, वापस आ जाएंगे, ठीक है जी। सो व्हाट डिड ही से, नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक मिनट बेटे, नाइट्रोजन जो अपने साथ बॉन्ड बनाता है या किसी और के साथ बॉन्ड बनाता है, P pi. पी पाई बनाता है। बट अगर फास्फोरस डबल बॉन्ड बनाएगा D तो pi P pi. फास्फोरस का हाईएस्ट होगा 3D, क्योंकि देखना वो 5 वैलेंसी दिखा रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, आगे गया। और ऑक्सीजन का कौन सा होगा, पी P पाई। pi. दिस इज गोइंग टू बी कौन सा होगा, पी पाई डी पाई। D pi. डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे आपकी Yes, मर्जी sir. है, जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड पी पाई डी पाई बॉन्ड। और एग्जांपल देख, दिस इज फास्फोरस एंड CH2, the R, the R, the R, D the pi C। P pi. वेरी गुड। कार्बन का कौन सा, P, और P pi. फास्फोरस का D। तो ये भी कौन सी बॉन्डिंग है बेटे तेरे पास, P पाई D पाई बॉन्डिंग। ये डबल बॉन्ड वाले को देख रहा है, राइट। फास्फोरस और आर्सेनिक अपने साथ, फास्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म D pi bond also with transition when they are going to have this। Do you remember? हमने बड़ी जगह पे इनको एज अ लिगेंड यूज किया। दिस इज Yes, सेंट्रल sir. and this is going to be the P what, S3। so it is acting as a dative bond। अब ये dative bond में वो कह रहा है कि वो अपने d ऑर्बिटल को यूज कर सकता है, जबकि नाइट्रोजन अपने d ऑर्बिटल को यूज नहीं कर सकती है। नाइट्रोजन के पास d है ही नहीं तो वो d कहां से लेके आएगा, ठीक है बच्चों। सो Yes, sir. नाइट्रोजन नहीं डी यूज कर सकता है, नीचे वाले सारे के सारे अपने डी ऑर्बिटल्स को यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ही वांट टू टेल यू। सो you people should make notes for method of preparation for nitrogen। they will be asking your school exam, give 2 methods of preparation of nitrogen। objective में which of the following is not ABCD the method of preparation of nitrogen। so that type of questions are going to be expected। so method of preparation of nitrogen I'm writing important। ऐसा नहीं कि बहुत सारे एलिमेंट्स की बात करूंगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसे बस कुछ खासकर 3-4 एलिमेंट्स की बात करूंगा। प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड एंड Na2।
that is going to produce nitrogen, water and NaCl. समझ आएगा? The first method of preparation. The second, it can be prepared by heating ammonium dichromate. Cr2O3, nitrogen, and the Cr2O3 is a blue colored compound. It can be prepared by heating ammonia with CuO, producing nitrogen, or it can be prepared by heating ammonia with the bleaching powder, CaOCl2. CaOCl2. How does it dissociate? Does anyone know? OCl negative. इसका नाम क्या है? Hypochlorite ion. Hypochlorite. Bleaching powder. Giving you calcium chloride, giving you nitrogen, and the water is going to be produced. Very pure nitrogen can be obtained by thermal decomposition of sodium or barium azide. वो ये NCERT का question है. You can heat sodium azide to form sodium and the nitrogen. मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो भी clear है. Very pure form of nitrogen can be prepared by heating these compounds. This is important, but this is you have to make notes. Commercially, the dinitrogen is prepared by cooling the air. अब एयर के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन है और आपके पास ऑक्सीजन है, तो इसको हमने बना दिया लिक्विड. अब लिक्विड बना दिया, अब इसका धीरे धीरे करके टेम्परेचर इंक्रीज किया. द नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 77 केल्विन है और ऑक्सीजन is going to have 90 केल्विन. सो फर्स्ट हमारे पास कौन सी गैस आएगी? नाइट्रोजन गैस is obtained. Then the nitrogen goes out. टेम्परेचर आपका केल्विन स्केल पे बढ़ रहा है, तो सेकेंड स्टेप में आपके पास O2 gas is going to be obtained. So you can say there's a commercial method of preparation for the nitrogen or the oxygen. Commercial. So nitrogen and oxygen जो hospitals में भी use करते हैं, we can obtain from the distillation of air. बट इसको प्योरीफाई करना जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं. बट इफ वी आर गोइंग टू मेंटेन द बॉइलिंग पॉइंट, then we can get quite a lot of pure amount of nitrogen can be obtained. ठीक जी. Properties of dinitrogen. It's a colorless, no smell and tasteless gas. And मजेदार बात, the nitrogen gas has intoxicating effect. You understand intoxicating? जैसे अल्कोहल या अदर ड्रग ऑफ अब्यूजेस एक नशा लेके आती हैं, ऐसे नाइट्रोजन एक नशा लेके आती है. It has two stable isotopes and it is non-toxic. Normal concentration. Slightly lighter than air and vapor density is 14. Bedi, what is the vapor density of air? Yes, Bedi? 14.4. Do you know what is vapor density? सर एक और बार बोलना. What is the vapor density of air, Vidya? M/2. M कितना होता है एयर का एवरेज? 28.8. कैसे निकाला? 78 into नाइट्रोजन प्लस 21 into ऑक्सीजन का वेट प्लस 1 into आर्गन डिवाइडेड बाय 100. एवरेज निकालते हैं ना. और नाइट्रोजन की वेपर डेंसिटी कितनी है? Okay, sir. The vapor density of nitrogen is
14. Yes, sir. It has a 14. low solubility in water. याद नहीं करने, low melting point or boiling point room temperature से कहीं नीचे है. It is chemically unreactive at ordinary temperatures. The low reactivity is due to very small size and high bond dissociation enthalpy. Only at high temperature it combines with some metals and non-metals. Does not have a very good reactivity. At it is going to be neutral towards litmus. With metals, it combines with active metal. Active metal which are going to have lesser electron gain, standard electropotential. For example, lithium form nitride, magnesium, calcium, and aluminium form nitride. All of them on hydrolysis will give you ammonia. How can you judge it? Again, बिंदल, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट इस वक्त -3 है. अगर पानी डालेंगे दोस्त तो हमें क्या मिलने वाला है? The ammonia is going to be all of them can produce the ammonia, all of them. Yes. And it's an important process, Haber process, which is used for fixation of nitrogen. Class 11 से चलते हुए, this question has been asked many number of times, so you cannot, मतलब इसको भूल ही नहीं सकते हो. ये मैं 250 की जगह इसको आपकी बुकिश बना रहा हूँ 200 atmosphere pressure. Ammonia is manufactured industrially by Haber process. The raw materials of nitrogen and hydrogen. Nitrogen, hydrogen forms 2 ammonia. The reaction is exothermic. Only about 10 to 15% ammonia is obtained. The optimal conditions are 200 atmosphere pressure, 450 degrees Celsius, 273 ऐड कर दीजिए, केल्विन में आ जाएगा. Presence of iron as the catalyst. Draw नहीं करने का, just go through that. Because of importance, this is going to be a question. Class 11th आपके पास हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से लेते हुए, इक्विलिब्रियम से लेते हुए, ये क्वेश्चन हमेशा आपके साथ चलता है. This is an exothermic reactions. Questions directly ऐसा ही है आपके सिलेबस में. Discuss the conditions which are required for producing maximum amount of ammonia. First is low temperature, because exothermic है. Exothermic are favored by decrease in temperature, but we have to obtain and maintain an optimum temperature 700, because इससे कम करने पे वो रिएक्शन ही नहीं होने वाला है. नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम है, सो हमें बैलेंस बनाना पड़ता है. सेकंड, हाई प्रेशर, 200 atmosphere pressure is required. Third, catalyst, use iron oxide containing थोड़ा सा molybdenum, बाकी भी हैं बट मैं सिर्फ molybdenum बोल रहा हूं, as a promoter. Promoter increases the efficiency of the catalyst. This data has to be, कभी भी नहीं हमने बोला आपको दिमाग में रखने का है. CTM का मतलब commit to memory. As such, this is a question because of its importance. Cannot be forgotten under any circumstance. Ammonia एक colorless characteristic smell है जिसको हम ammoniacal smell करते हैं. It is lighter than air, right? Ammonia का molar mass is 70. तो इसकी जो vapor density हो गई है, that is going to be 8.5, much lighter than air. Highly soluble in water because it is going to form ions and the solution is going to be basic in nature. Ammonia, one of a very important gas,
It can be easily liquefied because of hydrogen bonding. Liquid ammonia याद नहीं करना है, has boiling point and freezing point this. Since it is a base, तो it turns red litmus क्या चीज बना देता है? Blue. तो रेड लिटमस सॉल्यूशन को या पेपर को ये ब्लू बना देता है. दैट इज गोइंग टू बी अमोनिया की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है. बिकॉज ऑफ लॉन्ग पेयर इट कैन एक्ट एज अ लुइस बेस. शैल आई लीव इट? कहीं पे डिस्कस हुआ है? डेटिव बॉन्ड, कॉम्प्लेक्सेस पूरे का पूरा डिस्कस किया गया. Since ammonia forms complexes, the white precipitate of silver chloride dissolve in excess of ammonium hydroxide to form a soluble complex. ये कहाँ पे यूज हुआ है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज किया है? Anyone? It is test of ammonia. Test for chlorine, white precipitate of AgCl is which get completely soluble in ammonium hydroxide. जबकि जो AgBr के white precipitate आते हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके येलो precipitate जो होता है वो उतना soluble नहीं होता, जबकि जो AgI है वो insoluble रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में. Similarly, copper sulfate dissolve in ammonium hydroxide to form a deep blue colored complex. Tetraamine copper 2 sulfate complex is going to be formed. Ammonia with halogen chlorine react in two ways depending upon whether ammonia in excess or chlorine in an excess. Reaction important है बच्चे. With excess of ammonia हमें अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन मिलता है. With excess of chlorine हमें NCl3 मिलता है. नंदनी रतन सीधे क्वेश्चन तेरे को इसके ऊपर मिलते हैं. Bromine also react in similar way. That is excess of ammonia हमें अमोनियम ब्रोमाइड एंड नाइट्रोजन मिला, और अगर एक्सेस ऑफ ब्रोमीन था तो NBr और HBr मिला. दैट इज क्लोरीन. हाँ बेटा बोल. अमोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के अंदर फिर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या होगी? 4. ओके सर, आयनिक होगा. हाँ, ये अपने आप में क्वेश्चन पूछ लिया तुमने. एक अमोनियम क्लोराइड में कितने प्रकार के बॉन्ड है? 1 आयनिक और 4 कोवेलेंट, या 1 डेटिव और 3 सिग्मा. ओके सर, ठीक है सर. अच्छा सुन, इसको याद रखना बेटा, ये रिएक्शन को याद रखना. इनऑर्गेनिक इज लाइक दिस. अमोनिया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन. विद आयोडीन it react differently. First, it react with iodine to form a dark brown complex. है तो पर्पल बट वो डार्क, आपको बहुत ज्यादा गूढ़ा आपको लगता है. नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिएट बनता है. The complex is very explosive when dry. It explodes violently when rubbed against a hard surface. Ammonium triiodide ammoniate हीट किया तो नाइट्रोजन गैस, तो आपके पास एक राउंड बॉटम में इसके आपके पास NH3NI3 था, ये फटा तो इसने नाइट्रोजन गैस पैदा की, एंड द रिएक्शन इज गोइंग टू बी एक्सप्लोसिव. ओके सर. हमारा एक दोस्त था तो वो भाई साहब ना इसको लेके आ रहे थे, उसको मना किया कि तेरे को सर ने मना किया था कि इसको हिलाना नहीं, तो वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में ना ऐसे ऐसे करके चलता आ रहा था, अंगूठा डाला हुआ था. तो हमने कहा कि भैया ये तुम तो डरपोक हो, कुछ नहीं होता. वो ना पता नहीं कैसे डायलॉग मारता था. तो मुश्किल से 3 या 4 मिनट बीते होंगे, हमें कॉल आई कि हरीश जी का एक्सीडेंट हो गया, उसको PI लेके जाना है. टोटली शीशा ना पता नहीं कहाँ पे उसकी बॉडी में घुसा है, और वो अभी तक ही अलाइव एंड
मतलब वेरी गुड टिकिंग है, तो अभी तक उसका शीशा नहीं निकला कहाँ पे घुसा है. So that happens. Okay, sir. When ammonia is passed over heated copper oxide, अभी पीछे भी किया था, you are going to get nitrogen. Ammonia plus oxygen, this reaction is going to be very important because it will be used for preparation of nitric acid urea. अगली क्लास में आने वाला है. अमोनिया ऑक्सीजन NO बनाता है, NO से आगे NO2 बना के अभी करेंगे थोड़े समय में, हम उसको यूज करते हैं एज नाइट्रिक एसिड के लिए. Okay, sir. Ammonia combustible or supporter of combustion, but it burns in oxygen to form dinitrogen and ammonia. तो बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस वो अमोनिया के इतने रिएक्शन आपसे बात करवा रहा है. Ammonia can react with sodium potassium to form amides plus hydrogen. You can just cook a story about this. Amide ion is a powerful base, so it can be used as a dehydrohalogenating agent. Sodium plus ammonia forms sodamide. Potassium plus ammonia forms potassiumamide along with hydrogen. Precipitation of heavy metal ions from the aqueous solution of their salts. Heavy metal ions such as iron, chromium are precipitated from the aqueous salt with ammonia. You have ferric chloride, right? ये टेस्ट फॉर फेरिक एल्यूमिनियम क्रोमियम आ सकता है आपकी लेबोरेटरी में, जो इस साल से किन्हीं कारण की वजह से आप लोग घुसे नहीं हैं. सो इट्स नॉट योर फॉल्ट. तो अगर फेरिक क्लोराइड में हम अमोनिया पास कराएं और वहां पे ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है, दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट ऑफ व्हाट सन, फेरिक. अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड हो तो हमें वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, टेस्ट ऑफ एल्यूमिनियम. Aluminium. एंड क्रोमियम +3 में हमें ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलता है. द ग्रीन precipitate is going to be obtained. Right? Okay. Uses of ammonia. Ammonia is used in manufacture of nitric acid, sodium carbonate. नॉवल के जैसे रीड करने का है. It is used as a refrigerant because इसका greenhouse effect नहीं है. So it is used in refrigerator and air conditioners in place of chlorofluorocarbons. Manufacture of rayon, that is fiber. फर्टिलाइजर्स एक मेन इसका यूज है. इट इज एन इंपॉर्टेंट reagent and used as solvent in the laboratory. Right, sir? We will not Yes. go beyond that. Right? अभी अगली क्लास में जाएंगे with oxygen, nitrogen fixation. अगली क्लास में जाएंगे oxides of nitrogen. So that will be inorganic के लिए ज्यादा है. तो आई डोंट एक्सपेक्ट दैट अगली क्लास में खत्म होगा, बट हम फास्फोरस में घुसे होंगे अगली क्लास में, और फास्फोरस की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस होने वाली हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आएगी होल्म सिग्नल, राइट? तो दैट इज गोइंग टू बी SOS सिग्नल, सेव अवर सोल यूज होगा फॉस्फीन में जाके. मैच स्टिक, व्हाट हैपेंस इन मैच स्टिक, फास्फोरस शुरू हो चुका होगा एंड ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस इनके स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, एंड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से निकलेंगे ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर बनने वाले होंगे. आई थिंक दैट विल बी मिनिमम, कम से कम एक सेशन तो लगेगा ही लगेगा, कम से कम. तो इट कुड बी मोर, बट वी विल नॉट मूव फर्दर. ईदर नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट में ये खत्म होगा बेटे. सो यहाँ पे we will stop and continue it in next session. All right, son? So anything to ask, anything to discuss, most welcome. Otherwise we stop here and see you again. Right up. Good luck, bachcho. Yes, sir. Take care.
Thank you, sir. Bye, Vidya. Thank you, sir. Good luck. Sign. Thank you, sir. Bye. Good luck.